हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रो पैरागॉजी। मैं हूं तनु राणा और आज हम आपके लिए स्पेशली डिजाइन करके लाए हैं क्रिटिकल पर्सपेक्टिव एंड इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन। आई एम वेरी मच श्योर इसमें से एक दो क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। According to the critical perspective, intelligence should be viewed as क्रिटिकल पर्सपेक्टिव के आधार पर इंटेलिजेंस को कैसे देखा जाता है? A fixed and innate ability, a single measurable attribute, a culturally and socially constructed concept, a product of genetic inheritance. The correct answer is a culturally and socially constructed concept. Next, the critical perspective challenges the notion of intelligence test as they intelligent test क्या रेफर करते हैं? Provide accurate measurement of intelligence, are universally applicable across culture, reinforce societal inequality and biases, reflect a person's innate ability. The correct answer is C. Reinforce societal inequality and biases. हिंदी मीडियम वाले अपना आंसर जो है देख सकते हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्लाइड में हिंदी में भी जो है क्वेश्चंस को लिखा है। नेक्स्ट चलते हैं। द क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंटेलिजेंस एम्फेसाइज। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव के आधार पर इंटेलिजेंस किस पे आधारित है? द इम्पोर्टेंस ऑफ जेनेटिक फैक्टर इन डिटरमाइनिंग इंटेलिजेंस, the role of formal education in shaping intelligence, the impact of environmental factors on intelligence, the existence of single universal definition of intelligence. Yes, the correct answer is again C, the impact of environmental factor on intelligence. तो environmental factors पे काफी हद तक जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड है। ये सिर्फ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्रिटिकल पर्सपेक्टिव को देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a key criticism of intelligence test from a critical perspective? क्रिटिसिज्म, मेनली क्रिटिसिज्म इंटेलिजेंस टेस्ट को क्या मिलेगा क्रिटिकल पर्सपेक्टिव के आधार पे? दे फेल टू मेजर क्रिएटिविटी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, दे आर बाइज्ड against individual from disadvantaged background, they provide objective and unbiased assessment of intelligence, they predict future academic success. तो इसको हम क्लियरली देख सकते हैं, दे आर बाइज्ड अगेंस्ट इंडिविजुअल फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड। Next, the critical perspective argues that intelligence should be understood as an innate and fixed trait, a hierarchical system with multiple components, a culturally and contextually defined concept, a measure of academic achievement. The correct answer is C, a culturally and contextually defined concepts. Next, which of the following refers to the ability to understand and use language effectively? इनमें से क्या लैंग्वेज को इफेक्टिवली अंडरस्टैंड और यूज करने में हेल्प करेगा? लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, स्पेशियल इंटेलिजेंस और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। द करेक्ट आंसर इज बी, linguistic intelligence. Which type of intelligence is related to a problem solving, reasoning and critical thinking? इनमें से कौन सी इंटेलिजेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी? लिंग्विस्टिक, लॉजिकल मैथमेटिकल, इंट्रापर्सनल या बॉडीली काइनेस्थेटिक? द करेक्ट आंसर इज बी, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस. Next question, what does the term multidimensional intelligence refers to? Multidimensional intelligence किस लिए रेफर किया गया और ये आपको पता है थ्योरी किसने दी थी? हॉवर्ड गार्डनर ने दी थी ये थ्योरी और उन्होंने ये वर्ड यूज किया था ऐसा
उन्होंने किस लिए रेफर किया था? द एबिलिटी टू एक्सेल इन multiple academic subjects, the capacity to understand complex mathematical concepts, the presence of various intelligence in an individual, the ability to communicate effectively in multiple languages. The answer is C. The presence of various intelligence in an individual. एक व्यक्ति में विभिन्न बुद्धियों की मौजूदगी को ही हम multidimensional intelligence कहते हैं. Next question. Which type of intelligence is associated with artistic and creative ability? The correct answer is, सब बता पाएंगे आर्टिस्टिक, तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस के अंदर इसको हम रख सकते हैं. Next question. In Howard Gardner theory of multiple intelligence, which intelligence is associated with self-reflection and self-awareness? The correct, yes, ये आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे. इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस. यहाँ पे दो चीजें हैं, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस एंड इंटरपर्सनल. आपको इसको ध्यान से क्वेश्चन को देखना है और तभी अटेम्प्ट करना है. इंट्रापर्सनल का मतलब होता है जब हम सेल्फ एनालाइज करते हैं, सेल्फ अवेयर होते हैं कि हमें कितना आता है, हमने कितना पढ़ा, कितना. तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ अवेयरनेस की तरफ ले जाते हैं. लेकिन इंटरपर्सनल का मतलब है कि जब हम दूसरों के साथ दूसरों को साथ लेके जब चलते हैं तो वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में आती है. जब हम दो व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो वो इंटरपर्सनल में कहीं ना कहीं आ जाता है. आगे बढ़ते हैं. Which of the following is not considered one of Gardner multiple intelligence? इनमें से गार्डनर ने कौन सी इंटेलिजेंस को नहीं रखा था? इमोशनल इंटेलिजेंस, स्पेशल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस या फिर एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस? Yes, the correct answer is C, spiritual intelligence. Next, what role does language play in human thought? लैंग्वेज का क्या रोल रहेगा? एक जब हम कुछ सोचते हैं तो उसका लैंग्वेज का क्या रोल रहता है? लैंग्वेज शेप एंड इन्फ्लुएंसेस आवर थिंकिंग. लैंग्वेज हैज नो इम्पैक्ट ऑन आवर थॉट प्रोसेस. Thought and language are independent of each other. Language restrict our ability to think critically. Yes, the correct answer is A. Language shapes and influences our thinking. आप सभी ने ये कभी ना कभी महसूस किया होगा, जब हम सोचते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में सोचते हैं. ये जो लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं, मिक्स लैंग्वेज, उसमें जो है हम लोग ज्यादातर सोचते हैं. तो एक मतलब एक शेप जो है हमारे विचारों को कौन प्रदान करता है? लैंग्वेज प्रदान करती है. Which type of intelligence is associated with the ability to understand and appreciate nature? Naturalist intelligence, musical intelligence, linguistic, logical, mathematical. Yes, बताइए. जब हम किसी नेचर को अप्रिशिएट कर रहे हैं या हम अप्रिशिएशन की एक कैपेसिटी को रखते हैं तो वो किसके अंदर आएगा? नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस जो है वो होगी. नेक्स्ट चलते हैं. According to Gardner theory, which intelligence is associated with the ability to understand and empathize with others? Yes, ये अब आप बिल्कुल अच्छे से आंसर दे पाएंगे. मैंने कहा कि दूसरों को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं, दूसरों से जब हम एम्पैथी, सहानुभूति रखते हैं, तो वो किसके अंडर, कौन सी इंटेलिजेंस के अंडर आता है? Yes, the correct answer is interpersonal intelligence. Next. What does the term metacognition refers to? ऑलमोस्ट मेरी सारी सीरीज में ये क्वेश्चन है. मेटाकॉग्निशन, विगोस्की के ऊपर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, सेल्फ रिफ्लेक्शन पे क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्रिटिकल थिंकिंग पे क्वेश्चन. अगर ये सारे वर्ड्स को इकट्ठे देखा जाए तो ये सिर्फ किसकी तरफ इशारा करते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर 15 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, द अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ one's own thought process. तो जो मेरी रेगुलर सीरीज को देख रहे हैं वो इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे. आगे चलते हैं. Which of the following type of question is most effective for assessing the readiness level of learner? Yes, इसमें से कौन से क्वेश्चंस ऐसे हमें डिजाइन करने चाहिए जो लर्नर्स की रेडीनेस को असेस कर सके? क्लोज एंडेड क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस,
ओपन एंडेड क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। रेडीनेस का पता करना है तो हमें ओपन एंडेड क्वेश्चन ही पूछने चाहिए। आगे चलते हैं। When assessing readiness level, it is important to ask question that focus on। जब हम किसी की रेडीनेस लेवल को पूछ रहे हैं तो हमें किस पे उसका ध्यान देना, मतलब किस चीज पे उसका ध्यान देना। क्या नॉलेज रिकॉल पे ध्यान देना चाहिए, क्या उसकी क्रिटिकल थिंकिंग पे ध्यान देना चाहिए, क्या मेमोराइजेशन एबिलिटी पे ध्यान देना चाहिए, या उसकी स्पीड पे ध्यान देना चाहिए कि वो कितनी स्पीड में बोल रहा है। हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब वो कैसे आंसर दे रहा है, क्या उसका लेवल है, तो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आगे चलते हैं। Which of the following is not a characteristic of effective question for assessing readiness level? इनमें से कौन सा क्वेश्चन इफेक्टिव नहीं रहेगा रेडीनेस लेवल चेक करने के लिए? Clear and concise language, multiple correct answers, related to learning object, appropriate difficult level. Yes, the correct answer is multiple correct answer। जो है वो हम एक इफेक्टिवनेस नहीं रहेगा कि कोई आया है रेडी है लर्निंग के लिए और उसे हम एमसीक्यू दे देते हैं, तो वो एक अच्छा तरीका नहीं रहेगा। आगे चलते हैं हम। Which of the following strategy can be used to assess readiness level of learner? Again, हम कौन सी स्ट्रेटेजी जो है वो यूज कर सकते हैं रेडीनेस देखने के लिए, लर्नर की रेडीनेस? असाइनिंग ग्रुप प्रोजेक्ट, कंडक्टिंग ओरल प्रेजेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेटिंग रिटन टेस्ट, ऑब्जर्विंग क्लासरूम बिहेवियर। Yes, the correct answer is C, administrating written test। हम एक रिटन टेस्ट जो है उससे ले सकते हैं। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स है। असेसिंग रेडीनेस लेवल शुड ओनली बी डन एट बिगिनिंग ऑफ लर्निंग यूनिट। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये सही है या गलत है? यस, द करेक्ट आंसर इज, सोचिए, इसका करेक्ट आंसर है बी, फॉल्स। ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे चलते हैं। Which of the following is a disadvantage of using multiple choice question for assessing readiness level? Limited scope for creativity, time consuming to grade, may lead to guessing, difficult to administrate. Yes, the correct answer is C, may lead to guessing। Next question. When designing question to assess readiness level, it is important to consider the background of learner, the availability of resources, the time constraint, the teacher preferences. Yes, the correct answer is A, the background of the learner। जब भी हम कोई डिजाइन करें क्वेश्चन तो उसका बैकग्राउंड जो है हमें पता होना चाहिए लर्नर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर एनहांसिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल इन द क्लासरूम? हमें किसी बच्चे की क्रिटिकल स्किल को बढ़ाना है तो हमें क्या करना चाहिए? encouraging rote memory, promoting independent inquiry and problem solving, providing all answer in advance, limiting student participation। अरे भाई ऐसे कैसे करेंगे हम, और कैसे दे सकते हैं सभी आंसर एडवांस में, है ना? तो हम क्या करेंगे, हम प्रमोट करेंगे ताकि बच्चा ज्यादा से ज्यादा इंक्वायरी करे और उसको ऐसी प्रॉब्लम दे तो बच्चा जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करे, खुद से सॉल्व करे, तभी उसकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो बढ़ेगी। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव वे टू असेस द रेडीनेस कॉम्प्रिहेंशन स्किल ऑफ लर्नर? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल चॉइस और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। हमने एक इफेक्टिव वे में असेस करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, तो अब हम उसे क्या दे सकते हैं? उसे हम नॉर्मली जो है कॉम्बिनेशन बना के देंगे जिसमें मल्टीपल चॉइस और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है रहेंगे। उसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल जो है वो पता है। हमें भी अभी जो कॉम्प्रिहेंशन आते हैं उसमें एमसीक्यूज हो गए या छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं, तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं किसी का भी कॉम्प्रिहेंशन। Which of the following strategy can enhance learning in the classroom? Providing step-by-step instruction for every task, encouraging independent thinking and problem solving, relying solely on lecture-based teaching method, limiting student interaction or discussion. The correct answer is B,
हम लोग उनको इंडिपेंडेंट सोचने का मौका देंगे, उन्हें इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका देंगे, तभी हम एक अच्छी इनहैंस लर्निंग कर सकते हैं किसी भी क्लासरूम के अंदर। आप लोगों को मैं धन्यवाद करती हूँ मेरी पहली 4 वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you so much.